how are you? This is Ganesh, and today we're going to talk about 10 rules of success. Today is also my birthday, 14th May, so I thought it would be better if I can make some motivational video and inspire people. So that is why I'm making this video. Today is 14th May, and it's also a birthday of many other great people like Mark Zuckerberg, who is the founder of Facebook, Pranav Mistry, who is the vice president of Samsung. I'm not comparing them with me. Obviously, I'm different to them. But there is one common thing that we all want to make change. We all want to make this world a better place. That is why today I'm going to discuss 10 rules of success, and I'm going to relate it with my stories. I'm going to talk about my own experiences. So that is why this video will be different than many other videos which are already available on YouTube. Friends, as you all know, today we are facing the pandemic all over the world. People are living in lockdown, they're staying in home, and they're frustrated. We don't know what to do. So, to answer these questions, to answer this situation, I would like to begin with point number 1, which is always be positive and believe in yourself. Now, many of you will ask how to stay positive in such a situation. What things we should do, what things we shouldn't do. I would say every problem comes with opportunity. So, as you're staying at home, you can do so many things which can be helpful for you in the future, such as reading positive or motivating books or reading biographies. I have my own biography, The Pursuit of Dreams, which is available online on Amazon, Kindle or other platforms also. But I'm not promoting my book here. You can read any motivational books, or you can watch biographical movies such as Bhag Milkha Bhag or MS Dhoni, The Untold Story. All these inspirational movies will give you inspiration, will give you a reason that staying positive always helps. So that is point number 1, and also believing in yourself. I'll relate it to my own example. When I was trying to make a movie, trying to produce a movie, I didn't come from the movie background. मेरा कोई background नहीं था film industry से. तो काफी लोगों ने मुझे बोला, so many people told me that it's not possible, you can't do it. See what happens when the people think they can't do it, they will tell you that you can't do it. That is why ignore them. Believe in yourself. I always believe in myself, and I thought that I can do it. And that is why I was able to produce not only one movie but 3 movies, one after another. So that is why believing in yourself is very very important. जब आप अपने आप पे बिलीव करते हो तो आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है. So that is point number 1, be positive and believe in yourself. Point number 2 is take risk. अगर लाइफ में आपको कुछ बनना है, कुछ अलग करना है, तो रिस्क जरूरी है. You have to take risk. Somebody has said the biggest risk in life is not taking any risk. काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ, वो लोग मैं देखा उनके पास काफ़ी पोटेंशियल होता है, काफ़ी टैलेंट है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास उनको फियर है. रिस्क कैसे ले, क्या होगा. दोस्तों, अगर आप रिस्क ना लो तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो इट वॉज अ बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि मैं घर के बाहर कभी गया नहीं था. एंड मेनी पीपल टोल्ड मी that if you go out there, this thing will happen, that thing will happen. So especially I would like to say this to all international students who are also currently in Australia. Don't worry. Even this situation, it will change. But you have taken a risk, you have to take a risk, you have to take calculated risk. ऐसा मत सोचो कि रिस्क बोला तो जाके छलांग लगा दो ऊपर से, ऐसा नहीं होता. You have to take calculated risk and eventually it will pay off. मैंने भी रिस्क लिया, मूवी प्रोडक्शन में रिस्क लिया, आईटी बिजनेस में रिस्क लिया, इवेंचुअली इट पेड ऑफ. आप देख सकते हो मेरी मूवीज यूट्यूब पे जाके,
मेरा नाम आप यूट्यूब पे डाल दो, सारी मूवीज आ जाएगी। शिवरामी सरदार मूवी है या सरफरोशी हिंदी मूवी है। एंड ऑल इट स्टार्टेड विथ रिस्क टेकिंग. Once you take a risk, eventually open the doors for you. So that is why it is very important. And also working hard at the same time is very important. Though so there is no shortcut to success. You know, when you work hard, it always brings a lot of success eventually to you. जैसे मैं ये मूवी कर रहा था शिवरामी सरदार, मैं सेट पे वहाँ पे 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक सेट पे रहता था। मैं खुद को प्रोड्यूसर था, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, मैं एक्टिंग भी करता था उसमें, मैंने उस सीन राइटिंग भी किया, उसकी स्टोरी और सीन भी मैंने लिखे, तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरे पास चॉइस था, अगर मैं किसी और के ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़ के मैं चला जाता तो भी काम शायद हो सकता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो सकता था। So that is why it is very important to work hard. When you work hard, everything is possible. Okay, so that is point number 2, take risk, work hard. That brings to me to point number 3, which is stay away from wrong path or wrong things. It is very important, especially in the time, in the difficult times. दोस्तों जब मैं स्टूडेंट था, when I was a student, ज़्यादा पैसे नहीं होते थे पास में, तो मतलब कभी कभी कुछ गलत लोग कुछ ऑफर दे देते थे। मेरे पास एक ऑफर आया था, $10,000 ऑफर किए गए थे मुझे गलत चीज़ें करने, जैसे ड्रग्स है। बोला भैया इधर से उधर ले जाना है, ड्रग्स कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आई रिफ्यूज टू डू दैट। क्योंकि अगर वो ऑफर मैं उस टाइम ले लेता, इफ आई वुड एक्सेप्ट दैट ऑफर, इट कुड हैव पुट मी इन बिग ट्रबल। मैंने वो जाना, क्योंकि अगर आप कोई गलत चीज करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए वो शायद आपको फायदा दिला दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ वो गलत हो सकता है। क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आता, और ऐसा हुआ, कुछ मैं नहीं लेकिन जिन लोगों ने किया वो कुछ लोग पकड़े गए और बाद में वो लोग डिपोर्ट हो गए, तो फिर क्या फायदा हुआ $10,000 का। सो दैट इज ऑलवेज थिंक, डोंट गो फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन, ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके, तो चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, गलत चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी। अगर अभी आप सोचोगे कौन सी चीज गलत है, कि वो कैसे डिसाइड करें, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है दैट यू आस्क योर पेरेंट्स, यू थिंक अबाउट हाउ योर पेरेंट विल थिंक अबाउट व्हेन यू डू दैट थिंग। कि अगर आपके पेरेंट्स आपके वो चीज करने से अगर आपको पेरेंट्स को प्राउड फील होगा तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर उनको शर्मिंदगी होगी तो वो चीज़ आप मत करो। और दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली इन डिफिकल्ट टाइम्स, बट इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन द टाइम ऑफ सक्सेस। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मेरी मूवीज़, मैंने दो तीन मूवी प्रोड्यूस कर ली थी और रिलीज भी की थी थिएटर्स में, तो एक थिएटर वाले का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे मीटिंग पे बुलाया था। एंड आई वेंट टू दैट मीटिंग एंड ही ऑफर्ड मी प्रपोजल। ही सेड, गणेश जी एक काम करते हैं, हम ऐसी मूवी प्रोड्यूस करते हैं जो सुपरहिट हो जाए, कम से कम 5-10 करोड़ आप कमा सकते हो। तो मैंने बोला व्हाट टाइप ऑफ मूवीज इज दैट? तो बोला कि वल्गर मूवीज करते हैं सर, आजकल बहुत चलते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, आप इतना पैसे डालो, हम इतने डालते हैं, लेकिन 100% आप 5-10 करोड़ कमा लोगे। तो मैंने बोला भैया नहीं, क्योंकि देखो पैसे कमाने का तो मेरे पास बिजनेस है, आईटी का, एजुकेशन का, तो मेरे पास और भी लीगल तरीके हैं। तो पैसे कमाने के लिए मैं इस फिल्म प्रोडक्शन में या मूवी फील्ड में नहीं आया। अगर मेरी मूवी सुपरहिट होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी मूवी करनी है मुझे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मैं मूवी कोई भी मूवी मेरी रिलीज करता हूँ तो मूवी के स्टार्ट में आता है, दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स को वो फिल्म डेडिकेट होती है, मेरे पेरेंट्स वो मूवी के प्रीमियर में भी आए हैं। तो अगर कोई मैं गलत मूवी करूंगा तो क्या वो प्रीमियर पे मैं पेरेंट्स को ले जा सकूंगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू चूज अ रॉन्ग पाथ। मनी विल कम टू यू इवेंचुअली इन द राइट वे if you follow the right path. So that is why don't go for a short term gain, always look for the long term benefit
in a right, legal, and moral ways. So that was point number 3. Okay, now we come to rule number 4. Rule number 4 is stay away from bad habits. दोस्तों, जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं कि मैं दारू या सिगरेट नहीं करता. I don't drink alcohol or I don't smoke. And that has helped me a lot in terms of health and other benefits. But I'm not saying that drinking alcohol is bad or drinking wine is bad. कोई भी नशा जब तक आपके ऊपर हावी नहीं होता तब तक वो ठीक है. लेकिन जब वो नशे के कंट्रोल में आप जाते हो, if that addiction controls you, then it becomes a big problem. That is why it's always good to stay away from bad habits like drinking alcohol or smoking, because number one, they're not good for your health. And number two, they can also put a lot of stress on you financially and mentally also. दोस्तों, क्या होता है कि जब हम अच्छी सिचुएशन में होते हैं तो हम हमें पता नहीं चलता है बैड हैबिट्स कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, लेकिन इफेक्ट करते हैं. लेकिन अगर हम बैड सिचुएशन में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मराठी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एग्जांपल है. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. मैं उनको बहुत मानता हूँ, डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर. ही वॉज अ वेरी बिग एक्टर इन 70s and 80s. लेकिन उनको एक बुरी हैबिट थी दारू पीने की. और जब उनका थोड़ा डाउन बैड सिचुएशन शुरू हुई तो उन्होंने काफ़ी पीना शुरू किया. मैंने उनकी मूवी भी देखी, उनके लाइफ के ऊपर जो मूवी आई थी वो देख के मैं बता रहा हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली इट इफेक्ट्स यू. सो इतना बड़ा एक्टर और एंड में बिकॉज ऑफ दैट वन हैबिट एवरीथिंग बिकम्स जीरो फॉर हिम. सो दैट्स व्हाई माय एडवाइस टू यू, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स. मुझे भी काफ़ी दोस्त मिले थे, मतलब जब मैं स्टूडेंट था, दे यूज्ड टू टेल मी कम ऑन हैव इट, हैव वन ड्रिंक. तो मैं बोला नहीं भाई. तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों, तो मैंने बोला ऐसे कि हमारी फैमिली की ट्रेडिशन है कि हम दारू नहीं पीते. तो बोले नहीं यार, फैमिली की ट्रेडिशन तोड़ दो, तुम्हारा नाम हो जाएगा फैमिली के टॉप में कि इस आदमी ने ट्रेडिशन तोड़ दी. लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसा करता आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती और मैं फिर अगर वो नशा मुझे कंट्रोल करता. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज tell all the people, all my listeners, stay away from bad habits. And if you're already having these habits, try to quit. Eventually, nothing is impossible. So try to quit those habits. If it's smoking, there are so many ways. There's so many methods which you can also Google and try to quit. So that was rule number 4. Rule number 5. Rule number 5 is learn from your mistakes. Nobody is perfect in this world. We all make mistakes. हम सब गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है. लेकिन समझदारी उसमें है कि उस गलतियों से हम कुछ सीखें और सुधरें. You learn from your mistakes and you improve. That is very important. For example, मैंने जो मूवी की थी सरफरोशी, हिंदी मूवी थी, पहली मूवी थी, उसमें मैंने काफ़ी गलतियां की, लेकिन उसमें से मैंने काफ़ी कुछ सीखा. और जब मैंने मेरी नेक्स्ट मूवी की शिवरामी सरदार, तो वो गलतियां मैंने वहाँ पे सुधारी और मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया. तो मेरी जो नेक्स्ट मूवी थी, अगली मूवी थी शिवरामी सरदार, वो बेटर थी पहली मूवी से. और आगे भी जब मैं मूवी करूँगा तो दैट विल बी बेटर देन माई प्रीवियस मूवी. सो दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. अगर आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे. गलती करना कोई गलत नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती से सुधारना और आगे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. सो दैट इज रूल नंबर 5. रूल नंबर 6, फाइंड योर पैशन एंड फॉलो इट. आपकी जो पैशन है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर वो पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता. लेकिन दोस्तों, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि अगर हमारा प्रोफेशन अलग हो और पैशन अलग हो तो क्या करें. दैट कैन बी पॉसिबल, बट
what you have to do, you have to keep a balance between your profession and your passion. So for example, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आपका पैशन है राइटिंग, अगर आपको स्टोरी लिखना अच्छा लगता हो, तो दिस इज राइट टाइम. या अगर आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनाना या फिल्म्स बनाना अच्छा लगता हो, so you can make short films or short videos, you know. So always think that there is an opportunity in every problem. So when your passion becomes your profession, the life becomes vacation. क्योंकि आपका पैशन, आप जो चीज़ जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो वो चीज़ आप जी जान लगा के करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पैशन है मूवी मेकिंग. तो जब मैं फिल्म बनाता था या वहाँ पे सेट पे था, मैंने 12 घंटे 13 घंटे काम किया है एक दिन में. तो मुझे कभी पता ही नहीं चला. दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के हम सेट पे गए थे रेडी होके. तो पता ही नहीं चलता था कि कब ये सब हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी पैशनेट था उस चीज़ के लिए. So when that passion becomes your profession, the life becomes vacation. So that is rule number 6. Rule number 7, help others, inspire others. दोस्तों, जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो आप अपने आप की भी हेल्प करते हो. क्योंकि अगर ये दुनिया में हर कोई अपने लिए सोचने लगे, then this world will become very selfish world. That is why we have to help each other. We have to think about others. Whatever help you can do, whether you can help your neighbors or help your friends, whichever way. For example, अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ और उससे पहले भी मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है. कि मैं जैसे अभी मेरे नेबर्स को जाके या काफ़ी स्टूडेंट्स को जाके हमने फ्री में मास्क और ग्लव्स दिए, कुछ ग्रोसरी में हमने दी. तो छोटी छोटी हेल्प से भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है. मुझे काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया, तो उनको मैंने बताया भी कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें. जैसे एक बंदे का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि वो क्या करे, इंडिया वापस जाए या ना जाए. तो मैंने उसको वही बोला कि डोंट गो बैक, दिस टाइम विल ऑल्सो चेंज. ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव एंड हेल्प अदर्स. जब आप अपने आप की एक दूसरे की मदद करते हो, तो यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, इफ वी हेल्प ईच अदर, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव. एंड दैट लेगेसी वी कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एंड दिस इज वन वे टू मेक दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कोऑपरेटिव. ओके, रूल नंबर 8, बी ट्रू टू योर सेल्फ. अपने आप से आप ऑनेस्ट रहो, प्रामाणिक रहो. पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड. जैसे मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि जैसे कुछ इंडिया में कुछ बिलियनियर्स है जो 1000 करोड़ का कर्जा लेके भाग गए. दोस्तों, लेकिन वो रात को सो नहीं पा रहे होंगे. इफ यू नो, दे मे हैव thousands of crores debt on them, but if there is a knock on the door, they would be scared. हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए. चाहे आप कम कमाओ, थोड़े से कम पैसे कमाओ, लेकिन पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपके दिल में है आप करो, अच्छे के लिए करो. या जो भी आपके दिल में है वो आप, अगर अच्छी बात है तो वो आप बोल सकते हो किसी को, लेकिन किसी को हर्ट ना करें. अगर हर्ट करे तो माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें. क्योंकि जब आप सुबह उठे, जब मैं सुबह उठता हूँ, मिरर में अपने आप को देखता हूँ, देन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ. मैंने लोगों की हेल्प की है, आई हैव डन समथिंग गुड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर गलत तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ कमाओ, आप पीस ऑफ माइंड खो दोगे, एंड दैट विल बी लॉस ऑफ योर लाइफ. सो दैट इज़ वाई बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रूल नंबर 9, show gratitude. That means you have to say thank you to those who help you. It could be anybody, it could be your parents, it could be your friends, or it could be a stranger. अगर आपको कोई ज़रा से भी हेल्प करता है, कभी भी किसी भी पड़ाव पे लाइफ के, आप उनके प्रति थैंकफुल रहे, उनको थैंक यू बोले. चाहे वो आपके माँ बाप हो सकते हो या आपके फ्रेंड्स हो सकते हो. क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो,
एक अलग तरह की एनर्जी हो जाती है. So that is why I thanked all my friends who wished me on my birthday. Really thankful for wishing me on my birthday, guys. So gratitude, showing gratitude is very important. So that is rule number 9. And rule number 10 is very, very important rule, which is never give up. दोस्तों, लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, कर रहे हो, तो उसमें आप गिव अप ना करें. नेवर गिव अप. Whether it could be your goal or your dream. Keep trying until you are successful. दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा है, he has said, success is the ability to move from one failure to other failure with enthusiasm. अगर आप एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक सक्सेस एंथुजियास्टिकली अगर आप मूव कर रहे हो और उससे कुछ सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, सो इवेंचुअली सक्सेस विल बी योर्स. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू नेवर गिव अप. हमें कई बार ऐसा होता है कि अगर जो चीज़ हमें चाहे हमें नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप सीखो कि अगर वो गोल हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं. कैन वी लर्न समथिंग. जैसे इस लॉकडाउन में यू मे डू सो मेनी थिंग्स. यू कैन लर्न some free courses. You can try to do online courses, or you can read books. So try to do all those things which are possible. As I said, there is a opportunity in every problem. So try to find that opportunity. Learn something new. Learn from your mistake. And importantly, never give up in your goals, in your dreams. दोस्तों, जब मैं टीनेजर था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मूवी प्रोड्यूस करूँ, फिल्म में काम करूँ, या मैं स्टोरी लिखता था. मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी स्टोरीज पर्दे पे आनी चाहिए. तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, लाइक, क्योंकि मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था, और ऐसा नहीं कि मैं जाके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता था, क्योंकि घर से काफ़ी प्रेशर था कि आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, आपकी डिग्री कंप्लीट करो. लेकिन वो ड्रीम मैंने जिंदा रखा. आई नेवर गिव अप. और मैंने वो स्टोरी लिखी. आपने देखा होगा मेरी सारी मूवीज में स्टोरी मेरी होती है. तो इफ आई वुड हैव गिवन अप, आई वुडंट हैव मेड इट दिस फार. चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका ड्रीम हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर गिव अप. क्योंकि यू फेल व्हेन यू क्विट. वो कहते हैं ना कि दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो. So keep trying, stay positive, keep trying and never give up, and that is very, very important in life. So दोस्तों, ये थे 10 rules of success. आप फिर से ये वीडियो देखो या फिर से ये रूल्स आप देखो एक बार, और ट्राई करो इन पे चलने की. Try your best to do as per these rules, and I'm pretty sure eventually you will be successful. हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बेसिक रूल, जो बेसिक फंडा होता है, जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, वो सेम ही रहते हैं. तो मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरे अपने अनुभव से ये मैं आपको कह रहा हूँ, इफ यू ट्राई इट, यू विल बी डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. और एज आई सेड, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ट्राई टू इंस्पायर अदर्स. क्योंकि अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही हम इस दुनिया को बेटर कर सकेंगे. सो दैट इज माई मोटिव इन लाइफ, टू इंस्पायर अदर्स, टू हेल्प अदर्स. और अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कोई पर्सनल पूछना हो सवाल, तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. आप मुझे ईमेल करें. मेरा ईमेल एड्रेस है ceo@indoozentertainment.com. आप मुझे ईमेल करें. कोई आपके पर्टिकुलर सवाल हो या पर्टिकुलर सिचुएशन हो, तो हो सकता है मैं आपको पर्सनली आपको उसके बारे में गाइडेंस करूं, या फिर उसके बारे में हम वीडियो बना सकते हैं, कोई इस तरह का मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं. Friends, thank you. Thanks for watching this video. Stay safe, stay home, take care, and importantly, stay positive, believe in yourself, and never give up. Bye.